Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session number 17 for Logistics and Supply Chain Management, and here we will discuss supply chain management in service organizations or non-manufacturing sectors. The topics to be covered are supply chain management of products versus services, financial services sector, hospitality, transportation, software, communication, education and government. First is supply chain management of products versus services. The essential differences in the supply chain management of products versus services are as follows. Now first is simultaneous production or consumption. A large number of services can only be rendered when actually demanded, for example banking, nursing, etc. This leads to the second major difference, that is absence of inventory concept. ज़्यादातर जो बहुत सारी सर्विसेज होती है उनको हम जब वो एक्चुअली डिमांड होता है उसी टाइम पे रेंडर करते हैं, जैसे कि बैंकिंग, नर्सिंग, इनकी जब डिमांड होती है उसी टाइम पे हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, और इसलिए सेकंड मेजर डिफरेंस होता है एब्सेंस ऑफ इन्वेंट्री कॉन्सेप्ट. इन्वेंट्री कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है इस केस में. Then next is absence of inventory concept. As stated above, it is not possible to store a number of services in order to do a capacity matching between demand and supply as is possible in case of products. Products के केस में capacity match करनी जरूरी है, यानी कि हमें स्टॉक रखना जरूरी है, लेकिन सर्विसेज के साथ ऐसा नहीं होता. Hence this needs to be done by building up resources rather than the services to do demand supply matching. Then next is low or no cost of inventory or production. In a number of services or products, the incremental cost of either production or holding inventory is very low in comparison to the value of product. So कुछ cost of inventory जो होती है वो बहुत कम होती है, होती ही नहीं है कुछ products की या फिर services के केस में. Then next is instantaneous or rapid production. In case of product or services which can be digitally duplicated or copied, it is possible to produce virtually instantaneously at a very low cost, for example movie prints, photograph copies, etc. So इनमें कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के केस में जो डिजिटली डुप्लीकेट होती हैं वो हम एकदम से वर्चुअली और इंस्टेंटेनियसली प्रिपेयर कर सकते हैं. Then rapid or low cost distribution. Similarly, in case of electronic digital distribution over channels such as internet, the cost of distribution is very low and speed extremely rapid. जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन होती है चैनल्स के अक्रॉस, जैसे कि इंटरनेट के अक्रॉस, जो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है और स्पीड एक्सट्रीमली फास्ट होती है. Then next is impossible distribution. On the other hand, in case of some services, distribution is not possible as consumption has to happen at the spot of प्रोडक्शन. कुछ केसेस में क्या होता है सर्विसेज के केस में कि आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन उसी टाइम पे होती है जब सर्विस की डिमांड होती है और उसी स्पॉट पे होती है, उसी एरिया में होती है. देन नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिस्ट्रक्शन. Unlike physical goods, which may be gradually lose value over a time, services may incur sudden time-related value destruction. For example, once an aircraft takes off, the value of the unoccupied seats drops to zero. So फिजिकल गुड्स की जैसे मतलब जो फिजिकल गुड्स में ऐसा नहीं होता कि हम वैल्यू लूज कर देते हैं ओवर टाइम, सर्विसेज जो है वो इनकर करती है सडन टाइम रिलेटेड वैल्यू डिस्ट्रक्शन. जैसे कि एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करता है तो वैल्यू ऑफ अनऑक्यूपाइड सीट्स जो होती है वो जीरो पे पहुंच जाती है. सो दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिस्ट्रक्शन. Then next is applications of supply chain management. So supply chain management की काफ़ी सारी applications होती है, अलग अलग fields में होती हैं. For example, financial services including banking, insurance, stock trading, forex trading, etc. and allied services. Next is hospitality including hotels, restaurants, travel and tourism comprising road, rail, shipping and aviation industry pertaining to passenger transport. Then transportation
consist of goods transport by road, rail, air or water including courier and post. Then software. इसमें क्या होता है, दो सॉफ्टवेयर में भी कंसिडर्ड अ प्रोडक्ट, ऑल्सो वी विल लुक एट दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस फ्रॉम अ सर्विस पर्सपेक्टिव. सो अगर हम देखें सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर को हम सर्विस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. दिस विल इंक्लूड दी टेलको प्रोवाइडिंग पोर्ट्स as well as ISPs, mobile and satellite services etc., as well as broadcasting, telecasting and publishing industries. Next is healthcare, which includes hospitals, pharmacies and elite services. Then consultancy में आ जाएगा knowledge management activities as well. Then education में आ गया both classroom and distance learning. And government में आ जाएगा जैसे कि municipal, administrative, defense, police, judicial etc. services. एंड एक और जैसे कि रिटेलिंग भी हो सकता है, रिटेलिंग में आ जाएगा ट्रेडिंग एंड वैल्यू एडेड रीसेलिंग. देन नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर. फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में हो गया जैसे कि बैंकिंग में हाउ बैंक्स आर कटिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस साइमल्टेनियसली बाय चेंजिंग देयर सप्लाई चेन फ्रॉम ब्रिक एंड मोर्टर ब्रांचेस टू ATM एंड फोन एंड नेट बैंकिंग. सो इस केस में सप्लाई चेन हम यूज कर सकते हैं, मतलब ये भी सर्विसेज हो गई कि बैंकिंग अब ब्रिक एंड मोर्टर ब्रांचेस की जगह अब ATMs और ई-बैंकिंग या फिर फोन और नेट बैंकिंग के थ्रू होता है, तो एक तरह से ये बैंक की सर्विसेज होती हैं. देन ऑनलाइन मॉर्गेजेस, no brokers, no branches and lower costs. AFI, that is American Financial and Investment, shows the way. जो American Financial Investment है, it is a new breed of lender with no branches and brokers. It aims to deliver a totally new experience of mortgage shoppers, the ability to finance a new house without setting foot outside the old one. यानी कि अगर हमें नए हाउस के लिए फाइनेंस चाहिए तो हम घर बैठे बैठे भी वो कर सकते हैं, और ये पॉसिबल हुआ है थ्रू अमेरिकन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट. इन्होंने ऑनलाइन मॉर्गेजेस बनाई है, इंटरनेट के थ्रू हम मॉर्गेज कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं घर या फिर खरीद सकते हैं. ना ब्रोकर्स की जरूरत है ना ब्रांचेस की जरूरत है, और कॉस्ट भी इसमें कम आती है. देन इज क्रेडिट कार्ड्स. No forms, no waiting. Credit card on top from NextCard. NextCard is an excellent example of using e-service to streamline the supply chain of a financial product. So credit cards की केस में ना हमें फॉर्म्स भरने पड़ते, ना लाइन में खड़ा होकर वेट करना पड़ता है, तो एक तरह से ये भी एक फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का पार्ट है, सर्विसेज का पार्ट है. Then is brokerage. Charles Schwab shows the route to eBiz. Schwab is the supreme e-broker with 67% of its customers trade going over the web. It boasts $263 billion in ऑनलाइन रेवेन्यू. सो ब्रोकरेज भी एक तरह से सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये भी एक सर्विसेज का ही पार्ट है, फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसमें हम घर बैठे बैठे सर्विसेज गेन कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी में आ गए होटल्स एंड रिजॉर्ट्स और एयरलाइंस. जब होटल्स एंड रिजॉर्ट्स अगर देखें तो वर्ल्डरेस, हाउ वर्ल्डरेस अडॉप्टेड अ business model that took it on the net startups fast track and attracted $30 million from investors. So rather than just struggling to build a brand in a small niche, Worldres raised and spent more than $10 billion to build a reservation booking engine targeted at small hotels, inns and resorts that don't have enough business guests to justify a terminal and the costly links to global reservation system like Subway और अपोलो. सो ये वर्ल्ड रेस में काफी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके एक ऐसी रिजर्वेशन बुकिंग इंजन डेवलप किया था जिसमें हम अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं. ऐसी एयरलाइंस है जैसे कि साउथ वेस्ट एयरलाइंस. देयर साइट इज सो इजी टू यूज दैट वेब ट्रैवलर्स डोंट जस्ट रिसर्च फ्लाइट्स, दे बाय टिकट्स टू. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि पैकेज डिलीवरी सर्विसेज, जैसे इसमें अगर हम एग्जांपल लें फेडेक्स का, फेडरल एक्सप्रेस का, लॉजिस्टिक्स प्रोसेसेस डिलीवर ओवर 99% ऑफ पैकेजेस accurately and on time.
every day in spite of handling more than a million packages daily. जो FedEx है ये प्रोसेसेस 99 उनके पैकेजेस एक्यूरेटली डिलीवर करती है, जबकि वो रोज मिलियन पैकेजेस के साथ डील करते हैं, उन्हें हैंडल करते हैं. तो ये एक तरह से पैकेज डिलीवरी सर्विसेज का पार्ट है. In a highly competitive market, FedEx is the leader with 48% share. It launched its FedEx Ship customer premises ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इन 1994 itself. इन्होंने एक्चुअली ये क्या है जो हम डिस्कस करेंगे, सारे सॉफ्टवेयर है कि कैसे हम ई बिजनेस प्रमोट करते हैं. जो सर्विसेज है वो ई बिजनेस के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाई जाती है. काफी इजी, कम समय में क्विकली और फास्टर एक्सेस मिल पाता है कस्टमर्स को भी, और उनकी क्वेरीज भी जल्दी सॉल्व हो पाती हैं. सो ऐसे ये ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल है. Then is software. How resounding technology is using a low-cost approach to achieve wide global distribution. So resounding technology founder Adam Frankel uses viral marketing to distribute his software Roger Wilco that transmits voice over the internet and lets user link up in virtual conference calls. So एक तरह से इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था रॉजर विल्को. इसमें क्या था कि वॉइस कैसे ट्रांसमिट होती है इंटरनेट और कैसे कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू. सो ही पोस्टेड अ कॉपी ऑन अ फ्रीवेयर वेबसाइट inviting anyone to give it a try and forward the web address to a dozen friends. Within 24 hours, 2,800 people in 46 countries had downloaded the software. तो उन्होंने क्या किया, अपना सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर के थ्रू यूजर्स तक पहुंचाया कि वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद ये जो लिंक है आगे अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं. तो इसमें क्या हुआ था, विदिन 24 आवर्स 2,800 पीपल ने ये लिंक यूज किया और इन 30 days it spread to 1 lakh people and the year end target is to reach the 1 million mark. Though this does not result in profits on the internet, hits matter more than profits. इंटरनेट पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन जो जितने हिट्स आए पीपल के वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, वो ज्यादा मैटर करता है. Then next is communication. कम्युनिकेशन में जैसे इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, वॉइस कॉल्स होती है, फैक्स, ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिशिंग, ये सारी चीजें आ गई कम्युनिकेशन के अंदर. जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. तो इंटरनेट हो गया. इंटरनेट का भी पूरा जो होता है, किसी भी कंपनी में अगर इंटरनेट यूज हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए भी कोई चाहिए, सपोर्ट ऑफिस होना चाहिए. वॉइस कॉल्स को मैनेज करने के लिए पूरा नेटवर्क होता है और नेटवर्क मैनेजर्स होते हैं. ऐसे ही फैक्स के लिए भी मैनेजर्स चाहिए होते हैं. जब हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं इन सर्विसेज के लिए भी सप्लाई चेन होती है पूरी, एंड ऐसे ही पब्लिशिंग के लिए भी होती है. Then education. Delivering education through unconventional channels triggered by the internet, continuing adult education could become a great growth industry. Education is already grabbing a major chunk of GNP in developed economies. Education एक बहुत important part हो गया है किसी भी economy के लिए. The US alone spends $1 trillion on education and training. This number will increase rapidly, but the major growth is expected not in traditional schools, but in continuing adult education triggered by a supply chain revolution, online delivery. This opportunity has opened up as knowledge is मोबाइल, ट्रांसफरेबल एंड हाईली मार्केटेबल. सो एजुकेशन जो है ये भी एक तरह की सर्विस है और इसमें भी काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है. इंडस्ट्री ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है कि कैसे हम एजुकेशन डिलीवर करते हैं अनकन्वेंशनल चैनल्स के थ्रू. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में आ गया इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या फिर ई गवर्नेंस, कि कैसे फंक्शनैलिटी मैनेज होती है इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू, यानी कि इंटरनेट के थ्रू ओवर दी कम्युनिकेशन नेटवर्क, द इंफॉर्मेशन एज गवर्नमेंट. द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ई गवर्नेंस goes far beyond mere computerization of standalone back office operations. It means to fundamentally change as to how the government operates, and this implies a new set of responsibilities for the executive, legislature and the citizenries. यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ई गवर्नेंस का, कि कंप्यूटराइजेशन से आगे जा सके, यानी कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है ई गवर्नेंस ताकि वो मेजर प्रोजेक्ट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स
के थ्रू, यानी कि इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू लोगों तक पहुंचा सके और उसको इजीली मैनेज कर सके, ताकि क्विक एक्सेस कर सके, सिटीजन्स को भी उनके बारे में पता चल सके, लॉज और रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता चल सके। एंड ये इसका मेन मकसद क्या होता है कि फंडामेंटली कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कि गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट कर सकती है और सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर या फिर लेजिस्लेचर के अंदर। That's all for this session. Thank you and have a nice day.